Namaskar, my all dear student of class 11. I am Shikha, your mentor, to help you in the completion of your revision for the subject English for your upcoming examination. This video covers Hornbill poem number 2, Laburnum Top. That is a part of your half-yearly examination. It is written by Ted Hughes. We'll see line by line explanation with the meaning of some phrases, difficult word or new vocabulary, as well as the poetic devices including some important question answer. Okay, so we start the laburnum top. This is the laburnum tree. Laburnum top, let's understand the title first. Laburnum is a kind of tree and that is of yellow color. Which color? This is of yellow color tree. You must have seen in the garden or roadside. बहुत सुंदर लगता है जब इस पे फ्लावर्स सीड्स आते हैं. पूरा ट्री येलो मीन्स अ काइंड ऑफ ब्राइटनेस स्प्रेड वेयर एवर दिस ट्री इज सिचुएटेड. तो इसी के बारे में बताया गया है. टॉप इज कॉल्ड, इसका अपर जो पार्ट है वो इसमें डिस्क्राइब किया गया है. आइए हम देखते हैं. सबसे पहले पोइट के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन. मिस्टर एडवर्ड जेम्स और टेड ह्यूज, born on 17 August 1930 and died on 28 October 1998, and he was born in Mythilo Myroyd in the West Riding district of Yorkshire, UK. कहाँ जन्म हुआ था इनका? Yorkshire, UK. An incredibly prolific poet, translator, editor and children's book author of 20th century. He was appointed as poet laureate in 1984 and had its office until his death. And among his many awards, he was appointed to the Order of Merit, one of the Britain's highest honors. So he was a translator, editor, children's book author and prolific poet. Prolific we can say creative, okay, creative poet थे वो बहुत. And poet laureate we can say the member of the British Royal Society. जो British Royal जितने भी poets होते हैं उसका one of the member. तो poet laureate बने थे वो 1984 में. The rural landscape of Hugh's youth in Yorkshire exerted a lasting influence on his work. To read Hugh's poetry is to enter a world dominated by nature, especially by animals. And this holds true nearly of his all collected poems, and animals appear frequently throughout his work as deity, metaphor and persona and an icon. मतलब इनकी जो जितनी भी पोम होती थी, जितनी भी राइटिंग्स होती थी, उसमें डोमिनेटिंग जो फीचर है वो क्या होता था? नेचर. मतलब ये नेचर और एनिमल बेस्ड पोइट्री लिखते थे जिसमें एनिमल्स को कभी कभी देवता के रूप में, मेटाफर मीन्स किसी की सिमिलैरिटी के रूप में, किसी पर्सन के रूप में या किसी सिंबल के रूप में इन्होंने प्रेजेंट किया है. ठीक है, तो वी कैन से ही इज वन ऑफ द एनिमल एंड नेचर लवर्स पोइट इन इंग्लिश लिटरेचर. सो सबसे पहले थीम देखते हैं पोम की. द थीम ऑफ द पोम इज म्यूचुअल रिलेशनशिप. म्यूचुअल में दो लोग आते हैं. म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द लेबर्नम ट्री एंड गोल्डफिंच बर्ड. कौन से हैं दो लोग इसमें? एक है गोल्डफिंच बर्ड एंड लेबर्नम ट्री. लेबर्नम ट्री यू हैव सीन, दिस इज गोल्डफिंच बर्ड. येलो कलर की छोटी सी प्यारी सी ब्यूटीफुल बर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड गोल्डफिंच बर्ड. तो लेबर्नम ट्री और गोल्डफिंच के बर्ड का जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है दैट इज शोन इन दिस पोएम. एंड द लार्ज and the beautiful tree is quiet and lonely till the arrival of the goldfinch. On the other hand, the goldfinch, through amusing, is without a shelter till it finds the laburnum top tree. The poem shows how the laburnum top provides shelter to the goldfinch and its chicks, and the birds in turn takes away its dead silence. So how mutual relationship का मतलब होता है like means equivalent or कि balance from both side. What laburnum top tree is giving to goldfinch? Shelter. And goldfinch again in return it filled the tree that is quiet and very silent with the zeal, with the enthusiasm, with the kind of spirit. Okay, तो यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को कुछ ना कुछ देते हैं, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है. दैट इज शोन इन दिस पोम. इंट्रोडक्शन देखो. द पोम बिगिंस विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द लेबर्नम ट्री इज प्रिटी quiet in the yellow September light. Which month is shown here? September month. And due to the autumn season, which season is shown here? Autumn season. The leaves of the tree have turned yellow and the seed have dropped on the ground. It appears to be still till a goldfinch bird perches on its branch. Perches is called sits on its branch. बैठती है. The poet witnesses the tree come to life as soon as the birds start chirping. Chirping is the sound of the bird.
Upon the arrival of the mother goldfinch, the nestling start chirping and the tree becomes alive. तो यहाँ पे goldfinch bird जब आती है, then nestling is called the baby bird. The chicks होते हैं छोटे छोटे, and the goldfinch as it started, then chickling start chirping. Chirping again means goldfinch are also making the sound of chirrup, and the chicks are also making the sound of chirping sound. And the tree becomes alive. She keeps flying in and out to feed her young ones. Thus, when she leaves the tree once again, done in elusive silence, complete silence we can say. So, what goldfinch bird bring? Goldfinch bird bring life for the tree. The tree is very silent, and goldfinch, the arrival of the goldfinch bird bring life to the tree. But when goldfinch bird flew away, again the tree became silent. So this is the introduction. तो हम बोल सकते हैं इसमें characters क्या हैं, क्या क्या हैं, like all are non-living characters, tree and then goldfinch bird and the chicks of the birds, the baby birds. Central idea, the poem Laburnum Top is beautiful poem in which the poet has used the laburnum tree and goldfinch as a symbol of life and its fluctuations. देखो सेंट्रल आइडिया और इंट्रोडक्शन में क्या अंतर है. इंट्रोडक्शन मतलब दैट इज फॉर द रीडर, ठीक है, इंट्रोड्यूस करना कि इसमें ये है, इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, उनके क्या क्या काम है, व्हाट दे आर डूइंग. सेंट्रल आइडिया गिव्स यू अ क्लिक और अ थॉट ऑफ द माइंड व्हाट पोएट वाज थिंकिंग व्हेन ही वाज राइटिंग दिस पोएम. ओके, सो इट इनेबल्स यू to read the poet's mind besides or before reading the poem or any writing part. ठीक है, तो ये फ़र्क होता है. तो सेंट्रल आइडिया में हम बेसिकली पोइट के थॉट्स पढ़ रहे हैं कि वो क्या सोच रहे थे जब वो ये पोम लिख रहे थे. तो फ्लक्चुएशंस का मतलब होता है कभी सुख, कभी दुख, कभी शांति, कभी बहुत शोर. ये सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ में भी आती हैं वही ये सब दिखाया गया है इसमें लेबर्नम ट्री और गोल्डफिंच के फॉर्म में. द लेबर्नम ट्री सिंबलाइजेस द पैटर्न ऑफ अ लाइफ इन जनरल. लेबर्नम ट्री क्या है? जस्ट द रूटीन वर्क ऑफ आर मीन्स जनरल लाइफ, जो मोनोटोनियस डेली लाइफ होती है, विच इज़ यूजुअली डल एंड इनएनिमेट. क्यों होती है डल और इनएनिमेट? बिकॉज वी यूज टू डू द सेम काइंड ऑफ वर्क एवरी डे एंड नथिंग is that is enthusiastic and no adventure is there and we are not trying to just get into in any other situation. तो इस तरह का लाइफ किससे डिनोट किया गया है? जो हमारा रूटीन लाइफ है लेबर्नम ट्री से. एंड द गोल्डफिंच ब्रेक्स द यूजुअल पैटर्न एंड मेक्स इट्स लाइवली. कौन ब्रेक करता है? गोल्डफिंच बर्ड होती है, वो इस पैटर्न को ब्रेक करती है और थोड़ा सा इंतुजियाज्म, थोड़ी सी स्पिरिट लाती है ट्री में. Without the goldfinch, the laburnum tree is just like another tree. In other words, it is the attitude of a person towards the life that makes life meaningful and worth living. तो यहाँ पे हमको क्या देखना है, क्या बता रहे हैं पोइट? एटीट्यूड. कुछ लोग होते हैं जो मीन्स एवरीथिंग यू आर हैविंग गुड हेल्थ, wealth, shelter, food, everything you are having, even then you are keep on complaining, I don't have this, I don't have that, and I just want to be like that. Why? And some other, like if you will see at the other side, the poors, the deprived people who are not having any kind of means pleasure in their life, if they are have any kind of means like we can say na, the handicapped people, even then they seem so lively. तो यहाँ पे बताया गया है कि ये एटीट्यूड है कि आप लाइफ को किस तरह से देखते हो. सबके परेशानियां और दुख और हंसी खुशी सबके में आती हैं, बट एटीट्यूड जो आदमी का होना चाहिए वो हमेशा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव. एंड यही बताया गया है. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट स्टैंजा. द लेबर्नम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स fallen. Word meaning देखो, laburnum top means top part of the tree, that is laburnum tree. laburnum tree येलो कलर का ट्री जो मैंने दिखाया. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बताया है, क्या इंट्रोड्यूस किया है? द लेबर्नम टॉप ट्री. तो पहली लाइन में पोइट बताते हैं कि देयर इज एन लेबर्नम टॉप ट्री एंड हाउ इट इज क्वाइट स्टिल एंड साइलेंट. टू एडजेक्टिव्स हैव बीन गिवन इन द फर्स्ट टू लाइन्स फॉर ट्री. कैसा है ये? स्टिल है एंड साइलेंट है. स्टिल का मतलब क्या हुआ? विदाउट एनी मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, बिल्कुल शांति से ये खड़ा है. कब है ये? कब की बात है? आफ्टरनून की बात है. एंड कौन सा महीना है? सितंबर का महीना है. सनलाइट ऑब्वियसली आफ्टरनून है तो सनलाइट होगी. कैसी है सनलाइट? येलो. सनलाइट भी येलो कलर की है एंड लेबर्नम टॉप ट्री भी येलो कलर का है. दैन इट इज रियली स्प्रेडिंग अ लॉट ऑफ ब्राइटनेस.
A few leaves yellowing, all its seeds fallen. फ्यू, अब सितंबर का ऑटम सीजन है, ठीक है, सितंबर में ऑटम सीजन का स्टार्टिंग हो जाता है. ऑटम सीजन मीन्स जिसको पतझड़ का सीजन बोलते हैं, मीन्स द लीव्स स्टार्टेड फॉलिंग डाउन. पूरी तरह से फॉल नहीं होती हैं, स्टार्टेड फॉलिंग डाउन. थोड़ा थोड़ा करके लीव्स आ जाती हैं नीचे और उसके सीड्स भी आ जाते हैं. क्या क्या नीचे आ रहा है? लीव्स और सीड्स. कैसी हो जाती हैं? येलोइंग. येलो ही ट्री होता है बट उसमें फ्रेशनेस होती है. बट जैसे ही ऑटम सीजन आता है, दैट येलो, fresh yellow color started turning to dull or pale yellow color, and then it turns to brown, and then the leaves fall down. जब लीव्स गिरती हैं नीचे, उनके साथ कुछ सीड्स भी गिरते हैं. आपने देखा होगा ये इसमें ट्री में इस तरह के गोल गोल इस तरह के सीड्स होते हैं, लाइक ऐसे इस तरह के सीड्स होते हैं इसमें, एंड ये सीड्स भी नीचे गिर जाते हैं. ठीक है, जब ये नीचे गिर जाते हैं सीड्स, तो ऑब्वियसली वहाँ पे दूसरा जो पेड़ है उसका प्लांट, एंड देन स्प्राउट्स कम. सो इन दिस स्टार्टिंग लाइन पोइट हैज़ गिवन द इंट्रोडक्शन अबाउट द लेबर्नम टॉप ट्री, जो साइलेंट है, स्टिल है. सितंबर का महीना चल रहा है, दोपहर का टाइम है, और लीव्स और सीड नीचे बिखरे हुए हैं. नेक्स्ट, टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरअप, a suddenness, a startlement at a branch, and then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up. Goldfinch means a small yellow color bird. Twitching means a small or often. ठीक है, twitching is called, twitching is small or often. Involuntary movement of the body. क्या? ट्विचिंग मतलब इनवॉलंटरी मूवमेंट, हिलना, बॉडी का थोड़ा सा हिलना, या वी कैन से द मूविंग ऑफ द बॉडी. कभी कभी एकदम लगातार नहीं हिलते रहना, हिलना फिर बंद हो जाना, फिर हिलना फिर बंद हो जाना, तो ऑफन. और थोड़ा सा मूवमेंट, बहुत ज़्यादा नहीं. Chirrup is the sound made by the bird. Startlement is called amazement or surprised, wondered. Sleek is called smooth, and abrupt is called suddenly. So till the goldfinch comes, कब तक है? till किसके लिए आया है? इसको कनेक्ट करो पीछे कि laburnum top tree is silent. till वो शांत है. कब तक? जब तक गोल्ड फिंच बर्ड उस पर नहीं आती है. विद अ ट्विचिंग चिरप, ट्विचिंग इज कॉल्ड अपनी बॉडी को मूव करते हुए, चिरपिंग की आवाज़ करते हुए, जब तक गोल्ड फिंच बर्ड ट्री पर नहीं बैठती है, ट्री शांत रहता है. अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, कहाँ पे आके बैठती है वो? ब्रांच के एंड पे, पूरी टहनी के एंड पे आके वो बैठ जाती है. और क्या है ये? वो अचानक से आ गई है. ये एक अमेजमेंट है, एक वंडर्ड है. किसके लिए? ट्री के लिए. ठीक है, ट्री एकदम शांत था, अचानक से बहुत ज़्यादा शोर हुआ और कोई आ गया. मतलब क्या हुआ? इट वॉज रियली अ वंडरनेस फॉर द रीडर्स एंड फॉर द ट्री एज वेल, कि जो बर्ड आई है उसने पूरी जो साइलेंट थी उसको ख़त्म कर दिया और वो आके पेड़ की डाल के किनारे पर बैठ गई. देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अपलप्ट. कैसे वो आई थी? बहुत स्मूथली वो आई थी, जैसे कि लिजर्ड. आपने देखा है ना लिजर्ड, हाउ दे स्टिक टू द वॉल एंड सो स्मूथली दे क्रॉल ऑन द वॉल. कितने स्मूथली चलती हैं वो लिजर्ड. दैट्स वाई स्लीक वर्ड किससे रिलेट होता है? लिजर्ड से. पता नहीं चलता है कि एक, आप अभी देखोगे जैसे लिजर्ड यहाँ पे, 2 मिनट बाद देखोगे लिजर्ड वहाँ पे, पता भी नहीं चला कैसे पहुँच गई वो. और जब उसका मूवमेंट देखोगे बहुत स्मूथ होता है. सेम मूवमेंट वॉज ऑफ द गोल्ड फिंच बर्ड. वो बहुत स्मूथ तरीके से लिजर्ड की तरह आ जाती है. एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट. अलर्ट इज कॉल्ड अटेंटिव. वो अटेंटिव है और ये एक सडन अटेंटिवनेस है, मतलब वो अचानक से आ जाती है. देखो आती है अचानक है, लेकिन कैसे आती है? बहुत प्यार से स्मूथली वो आके बैठ जाती है वहाँ पे. एंड दैट शी वॉज रियली अटेंटिव. मतलब बर्ड तो अटेंटिव होगी ऑब्वियसली, तभी उसको पता है कि कहाँ बैठना है, वो टहनी पे आकर बैठ जाती है. शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्टअप. द थिकनेस का मतलब है जो पेड़ की डेंसिटी है. ठीक है, डेंस मतलब बहुत घने. और पहले तो ब्रांच के एंड पे आके बैठती है, उसके बाद धीरे 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 वो पेड़ के अंदर जाती है जहाँ पे पेड़ बहुत डेंस है, उसकी थिकनेस में जाती है. एंड मशीन स्टार्ट्स अप. और क्या स्टार्ट हो जाती है? मशीन. मशीन क्या होती है? मशीन इज समथिंग दैट मेक्स यू और दैट मेक्स एनीथिंग टू डू द वर्क. किसी चीज़ को वर्क कराना. ठीक है, तो यहाँ पे मशीन बर्ड के लिए आया है. Now, next lines. Chittering and of tremor of wings and thrillings, the whole tree trembles and thrills. It is the engine of a family. She strokes it full and then flings out to a branch and showing her bared face identity marks. Now chittering is the sound made by baby birds. ठीक है, chittering जो छोटे छोटे baby birds हैं उनकी sound है. Tremor is called shaking.
ओके, झटका जिसको बोल सकते हो. देन ट्रिलिंग अगेन, अ सिंगिंग ऑफ द सीरीज ऑफ द क्विकली रिपीटेड हाई नोट्स. ट्रिलिंग, बहुत तेजी से जब बर्ड्स बोलती हैं ना, बहुत हाई पिच पे कंटिन्यूस बोलती जाती हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिलिंग. चिटरिंग और ट्रिलिंग में क्या अंतर है? चिटरिंग या चिरपिंग, ठीक है, इसमें चिरपिंग आया है गोल्ड फिंच के लिए और चिटरिंग आया है उसके बेबी बर्ड्स के लिए. दोनों ही बर्ड्स की साउंड है. चिटरिंग चिरपिंग मतलब बोलना फिर चुप हो जाना, फिर बोलना फिर चुप हो जाना, ठीक है. एंड ट्रिलिंग में क्या है? इट इज अ सीरीज ऑफ हाई पिच साउंड्स made by the birds, continuously जो वो बोलती रहती हैं, that is called trilling. Trembles and thrills, shakes and violently, ठीक है. trembles and thrills मतलब violence, थोड़ा सा we can say ना, the means violence abruptly, and tremble का मतलब shake यानी कि moving. The engine of a family, the goldfinch. engine of the family का मतलब घर को चलाने वाला. इंजन से चलती है ट्रेन, तो घर को चलाने वाली कौन है? यहाँ पे गोल्डफिंच बर्ड के लिए आया है. Stokes adds fuel here to the goldfinch is feeding her chicks. यहाँ पे स्टोक्स का मतलब फ्यूल. फ्यूल का मतलब यहाँ पे क्या है? बोल सकते हो आप फूड, जो वो खाना लाई है अपने बच्चों के लिए, दैट इज फ्यूल. फ्यूल से क्या होता है? फ्यूल से मशीन चलती है, ठीक है. और कौन हेल्प करता है? इंजन हेल्प करता है, ठीक है. तो यहाँ पे कौन हेल्प कर रहा है? बर्ड हेल्प कर रही है. क्या खिलाने में? फूड टू द चिक्स. तो फ्यूल, फूड को हम फ्यूल बोल सकते हैं. एडिंग फ्यूल इज कॉल्ड मीन्स इट इज फीडिंग हर चिक्स, वो अपने बच्चों को खाना खिला रही है. फ्लर्ट्स इज कॉल्ड मूव्स अब्रप्टली और जर्कली विद लाइट स्टेप. फ्लर्ट्स मतलब धीरे धीरे, जर्कली इज कॉल्ड कभी कभी झटके के साथ, थोड़ा थोड़ा सा हिलना, अचानक से हिलना, ठीक है. बैठे हुए हैं फिर झटके के साथ हिलना, तो दैट इज कॉल्ड फ्लर्ट्स. नाउ बेड इज कॉल्ड स्ट्राइप्स. स्ट्राइप, इस तरह के जो स्ट्राइप्स, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइप्स. अब देखो, चिटरिंग्स एंड ऑफ ट्रेमर ऑफ विंग्स. नाउ चिटरिंग, कौन चिटरिंग किसके लिए आया? बेबी बर्ड्स के लिए. जैसे ही उसके बेबी बर्ड्स जो है अपनी माँ को देखते हैं, द मदर कम्स अप एंड हैज़ ब्रॉट फूड फॉर दैम ना, दे स्टार्टेड मेकिंग द साउंड चिटरिंग. तो अभी क्या, अभी तक बिल्कुल शांत थे बच्चे, बट जैसे ही मदर आई, बच्चों ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया. एंड देन of the tremor of the wings. Tremor is called again a shaking, moving of the wings, and trillings. ट्रिलिंग्स मतलब बहुत तेज़ी से. अब क्या है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मीन्स दे आर रियली एक्साइटेड कि अब उनको खाना मिलेगा. तो वो क्या कर रहे हैं? वो अपने विंग्स को शेक कर रहे हैं, छोटे छोटे जो विंग्स हैं उनको शेक कर रहे हैं. कंटिन्यूसली हाई पिच साउंड पे बोले जा रहे हैं कि अब उनकी माँ आ गई है, अब उनको खाना मिलेगा. एंड द होल टी ट्रैवल्स एंड थ्रिल्स. ऑब्वियसली विद द ट्रिलिंग साउंड, विद द कंटिन्यूस साउंड, पूरा जो ट्री होता है वो कैसे हो जाता है? वायलेंट हो जाता है. एंड वो मतलब दैट इज स्टार्टेड शेकिंग. पूरी पेड़ की पत्तियां, टहनियां सब हिलने लगती हैं. क्यों भाई? देखो, एक तो बर्ड आई है, बर्ड इज चिरपिंग, ठीक है. देन बेबी बर्ड, दे आर चिटरिंग. इतने सारे बेबी बर्ड्स, मोर देन वन कैन बी देयर, 3-4 हो सकते हैं, तो सब लोग चिल्ला रहे हैं. तो क्या होगा? इतनी सारी साउंड से जो पूरा ट्री है वो हिलने लगता है और अचानक से वायलेंटली नॉइजी हो जाता है. इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली. इट आया है यहाँ पर बर्ड के लिए. किसके लिए आया है? गोल्ड फिंच बर्ड के लिए आया है. कौन है ये? अपने उसकी घर की कौन है? ये इंजन है. इंजन मतलब जो घर चलाता है, वो है, वो किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए. उसके बच्चे हैं और वो इंजन है, क्योंकि वो अपने घर को चला रही है. घर को चलाने का क्या मतलब होता है? खिलाना पिलाना, देखभाल करना. शी स्ट्रोक्स इट फुल एंड देन फ्लट्स आउट टू अ ब्रांच एंड. उसके बाद क्या होगा? शी स्टोक इट फुल. स्टोक मतलब फीडिंग द फूड, फुल मतलब पूरा, अच्छे से पूरे जो भी खाना, जितना भी खाना लाती है, इट फीड्स टू चिक्स, बेबी बर्ड्स. वो पूरा खाना बेबी बर्ड्स को खिला देती है. बेबी बर्ड्स अब शांत हो गए हैं, दे आर नॉट हंग्री नाउ एंड दे स्टॉप्ड चिटरिंग. जब बच्चा बहुत भूखा होता है या कोई परेशानी होती है तभी वो रोता है. एक बार उसका टमी फिल हो जाए तो वो चुप हो जाता है. सेम ऐसे ही जो बेबी बर्ड्स थे, उनको खाना खिलाया और अब वो फिल हो गए हैं और अब कोई भी नॉइस नहीं है. देन फ्लर्ट्स. अचानक से जो बर्ड होती है गोल्डफिंच बर्ड, वो फिर से, फ्लर्ट मतलब झटके के साथ उड़ती है, मूव करती है और कहाँ आकर बैठ जाती है? फिर से ब्रांच की एंड पर बैठ जाती है. मतलब जब वो आई थी, कहाँ बैठी थी? वो ब्रांच की एंड पर बैठी. वो धीरे धीरे अंदर गई डेंस में. कहाँ पे? थिकनेस में. क्यों गई? बिकॉज शी हैज़ मेड हर नेस्ट इन द थिकनेस ऑफ द ट्री. आगे तो वो नेस्ट बनाएगी नहीं, गिर जाएगा. जहाँ पे मोटी ब्रांच होगी, जहाँ और अंदर जहाँ पे घना होगा, जहाँ बारिश या धूप नहीं आए, वहीं पे तो चिड़ियाँ बनाती है ना. तो वो अंदर जाती है, बच्चों को खाना खिलाती है और फिर से कहाँ आके बैठ जाती है? ब्रांच के एंड पे.
शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मार्क्स, उसका जो फेस है वो कैसा है, स्ट्राइप्ड है, ठीक है, स्ट्राइप्ड है, एंड ये उसका आइडेंटिटी मार्क्स है, ये उसकी पहचान है। छोटी सी बर्ड है, आप सारी इतनी सारी बर्ड्स को कैसे पहचानोगे? स्पैरोज आर ऑल्सो लुकिंग लाइक सेम, दे आर ऑल्सो हैविंग द स्ट्राइप्स बट दे आर नॉट इन येलो कलर, ठीक है। जो गोल्डफिंच बर्ड है वो दैट्स वाई इट इज़ गोल्डफिंच, इट इज़ ऑफ येलो कलर, और इसके फेस पे जो स्ट्राइप्स हैं, पीछे की तरफ जो स्ट्राइप्स हैं, वो इसका आइडेंटिटी मार्क्स है, मतलब वो इसकी पहचान है, उससे आप इस बर्ड को पहचान सकते हो। ये देखो यहाँ पर इस तरह की स्ट्राइप्स होती हैं, ये येलो कलर है और ये यहाँ पर ब्लैक है, बीच में ब्लैक है और इधर उधर येलो है, तो ये क्या है, लाइंस हैं जो इसका आइडेंटिटी मार्क्स है। आगे चलते हैं। Then with airy delicate whistle chirrup whispering, she launches away towards the infinite and the laburnum subside to empty. अभी एरी देखो, एरी मीन्स स्ट्रेंज इन अ वेरी फ्राइटनिंग और मिस्टीरियस वे, थोड़ा सा डरावना या थोड़ा सा सीक्रेट मिस्टीरियस वे में स्ट्रेंजनेस। लॉन्चेस इज कॉल्ड फ्लाइज, इन्फिनिट इज कॉल्ड द स्काई, अनलिमिटेड बोल सकते हो। स्काई को स्काई क्यों लिखा है इसको सब, क्योंकि स्काई भी कैसा होता है, अनलिमिटेड होता है, कोई लिमिट नहीं होती है उसकी। एंड सबसाइड्स टू एम्प्टी इज कॉल्ड बिकम साइलेंट जस्ट एज अर्लियर। सबसाइड का मतलब कम हो जाना, ठीक है, नीचे आ जाना, एम्प्टी मतलब फिर से वैसे ही जैसा वो था। नाउ देन विद एन एरी डेलिकेट विसल चिरप, कहाँ पे आके बैठ गई वो, ब्रांच के एंड पे आके बैठ गई, ठीक है, खाना खिला दिया। अब क्या होता है, अब वो एक स्ट्रेंज सा बहुत प्यारा सॉफ्ट सा विस्लिंग चिरप देती है, मतलब अब वो वाला उसकी चिरपिंग में, ये चिरपिंग पहले वाली जो चिरपिंग साउंड है उससे अलग है। कैसे? पहले वाली उसकी अराइवल की थी, टू मेक समवन अलर्ट, कि देखो मैं आ गई हूँ, मैं फूड लाई हूँ, बट अब जो साउंड है, द वर्क फॉर विच इट हैज़ कम दैट इज कंप्लीटेड एंड नाउ इट इज़ रेडी टू गो अवे। तो बहुत प्यारी सी विसल चिरप है जो बहुत सॉफ्ट है, विसल मतलब सीटी जैसी जो आवाज़ है, बहुत सॉफ्ट वो करती है। एंड देन विस्परिंग, विस्परिंग इज कॉल्ड स्पीकिंग वेरी वी कैन से ना लो, जो हम खुसुर फुसुर इस तरह से बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड विस्परिंग। तो बहुत छोटा छोटा यानी कि बहुत सॉफ्टली विसल चिरप और धीमी धीमी सी वो प्यारी सी आवाज़ में बोलती है। एंड देन शी फ्लाइज अवे, और फिर वो उड़ जाती है, कहाँ उड़ जाती है, टुवर्ड्स द स्काई। इन्फिनिट यहाँ पे किसके लिए आया है, स्काई के लिए आया है, कहाँ पे उड़ जाती है, टुवर्ड्स द स्काई। एंड द लिबर्नम ट्री, जो पहले जैसा था वो वैसा ही हो जाता है, पहले कैसा था, स्टिल एंड साइलेंट, एंड अगैन इट बिकेम स्टिल एंड साइलेंट। क्यों? अब वहाँ पे गोल्डफिंच बर्ड नहीं है, जो बच्चे हैं छोटे वो सो गए हैं, उनका पेट भर गया है, अगैन द ट्री came back into the same position. Okay, so this was the complete sweet little poem based on and shows the relationship of goldfinch and tree, laburnum tree. ठीक है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखो छोटे, ये काले काले, यहाँ पे कहीं काला है कहीं येलो है, तो ये स्ट्राइप्स हैं, इसके जो पंख होते हैं उन पे भी स्ट्राइप्स होते हैं, वाइट एंड ब्लैक, तो ये आइडेंटिटी मार्क्स है। आइडेंटिटी, मेन आइडेंटिटी मार्क्स तो यही है कि वो येलो कलर की बहुत प्यारी सी बर्ड होती है। चलो कंक्लूजन देखो इसका। To sum up the laburnum top summary, we learn about the sweet and nurturing relationship between the tree and the bird. कैसा relationship है? Sweet, बहुत प्यारा सा, and nurturing. Why it is nurturing भाई? क्योंकि जो ट्री है इट इज़ गिविंग द शेल्टर टू बर्ड एंड इट्स बेबी बर्ड, ठीक है, उसके चिक्स को शेल्टर दे रहा है, मतलब उनके जो ब्रिंग एंड ब्रॉटअप या नर्चरिंग में ट्री का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ट्री को क्या दे रही है बर्ड? उसको लाइफ दे रही है, उसको जील दे रही है। नाउ बिटवीन द ट्री एंड द बर्ड एंड हाउ दे बोथ प्ले सच इम्पॉर्टेंट रोल्स इन देयर लाइफ्स। देयर मतलब दोनों की लाइफ में दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी अगर एक नहीं होगा तो उसमें से जो दूसरे की लाइफ है वो कैसी हो जाएगी, विदाउट एनी ज़ील एंड इनकम्प्लीट लाइफ। ठीक है, तो ये कंक्लूजन है इसका पोम का। नाउ सम पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं। पोएटिक डिवाइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड अबंडेंस इन दिस पोएम। सबसे पहले है सिमली, डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ द टू थिंग्स यूजिंग लाइक एंड एज। जब किसी दो ऑब्जेक्ट का हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, ये रहा एक ऑब्जेक्ट, ये रहा दूसरा ऑब्जेक्ट, दोनों की सिमिलैरिटी को जब हम कंपेयर करते हैं, बट उसमें विद द हेल्प ऑफ 2 or 3 वर्ड्स लाइक एंड एज। अगर लाइन में लाइक या एज आ रहा है वहाँ पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस होगी? सिमली। यहाँ पे क्या है देखो, स्लीक एज अ लिजर्ड, यहाँ पे क्या आया? एज, तो यहाँ पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस है? सिमली। द गोल्डफिंच's alert, abrupt and sleek movement is being compared to that of a lizard. यहाँ पे दो चीज़ें क्या हैं देखो, sleek as a lizard, sleek मतलब स्मूथ मूवमेंट, ठीक है, lizard मतलब
जो छिपकली होती है, ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज़ को, दो ऑब्जेक्ट क्या हैं, एक तो है लिजर्ड और एक है बर्ड। तो जिस तरह से ये आपकी लिजर्ड है दैट मूव्स वेरी सॉफ्टली ऑन द वॉल, सेम एज दिस वे ऑफ वॉकिंग इज कंपेयर्ड विद द arrival, is smooth arrival of the bird. So goldfinch is alert, abrupt and sleek movement is being compared to that of lizard. ठीक है, नेक्स्ट देखो, मेटाफोर, इंडिकेटेड और इम्प्लाइड कंपैरिजन, इसमें भी बिल्कुल सेम कंपैरिजन ही किया जाता है, बट मेटाफोर और सिम्बली में अंतर क्या है, सिम्बली में ये दो वर्ड होते हैं जो दिखाई दे जाते हैं आपको, इट्स रेदर ईजी, ओके, इट्स रियली ईजी टू फाइंड आउट सिम्बली क्योंकि लिखा होता है सामने लाइक एज, और मेटाफोर में थोड़ा आपको समझना होता है क्योंकि लिखा नहीं होता है, विदाउट एनी वर्ड वी आर कंपेयरिंग टू ऑब्जेक्ट्स। देखो एग्जाम्पल देखो, इंजन ऑफ हर फैमिली, यहाँ पे आया है इंजन ऑफ अ फैमिली, इस लाइन में मेटाफर है। इंजन रिप्रेजेंट द मदर गोल्डफिंच, इंजन किसके लिए आया है, गोल्डफिंच बर्ड को क्या बोला गया है, इंजन। मशीन स्टार्टअप, मशीन रिप्रेजेंट द नेस्ट विद इट्स ब्रूड ऑफ चिक्स, ठीक है। जो मशीन है, मशीन को कौन चलाता है, मशीन कब तक नहीं चलेगी, जब तक उसमें इंजन नहीं होगा। ट्रेन मान लो बहुत बड़ी ट्रेन है, छोटी सी बच्चों की टॉय कार है, अगर उसमें बैटरी नहीं लगी होगी तो वो नहीं चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मशीन है, जो उसका घर है, उसको कौन चला रहा है, उसको इंजन चला रहा है। इंजन कौन है, गोल्डफिंच बर्ड, एंड मशीन हियर रिप्रेजेंट द नेस्ट विद इट्स ब्रूड ऑफ द चिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे फैमिली, उसकी नेस्ट और उसके बच्चे हैं जो कि क्या है, मशीन है, और गोल्डफिंच को इंजन बताया गया। तो दो चीज़ कंपेयर हो गया ना। देखो बर्ड को क्या बताया जा रहा है, बर्ड को बता रहे हैं इंजन, बर्ड इंजन के जैसी है, दो ऑब्जेक्ट हो गए। इंजन क्या करता है, मशीन को चलाता है, बर्ड क्या कर रही है, अपने घर को चला रही है। मशीन क्या होती है, मशीन इट्स जस्ट अ फ्रेम, फ्रेम है जो कि किसी कॉम्बिनेशन ऑफ द पार्ट्स या कॉम्बिनेशन ऑफ द मेंबर्स होता है। तो यहाँ पे मशीन एक वी कैन से द फ्रेम, द स्ट्रक्चर ऑफ द पार्ट्स, एंड व्हाट इज नेस्ट, नेस्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ होम और मेंबर्स ऑफ द गोल्डफिंच बेबी किड्स, ठीक है। तो ये दोनों आ गए हैं यहाँ पे मेटाफर में। नेक्स्ट देखो एलिटरेशन, एलिटरेशन में होता है रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है वो कैसी होनी चाहिए, सेम एट द बिगिनिंग ऑफ टू एडजेसेंट वर्ड, साथ साथ में जो वर्ड आते हैं उनमें जो होती है स्टार्टिंग में लाइन, उसमें होता है एलिटरेशन। कॉन्सोनेंट तो पता है ए ई आई ओ यू, वॉल साउंड के अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं, अगर कोई भी लेटर स्टार्टिंग में आ रहा है वर्ड के और वही लेटर सेम उस लाइन में, एक लाइन में देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस, उस लाइन में वही लेटर दोबारा या रिपीट हो रहा है, मतलब उसी लेटर से और वर्ड्स आ रहे हैं तो एलिटरेशन हो जाएगा। सेप्टेम्बर सनलाइट, देखो ये इट इज स्टार्टिंग विद एस, सनलाइट स्टार्टिंग विद एस, एलिटरेशन। सडननेस और स्टार्टलमेंट, सडननेस स्टार्टिंग विद एस, स्टार्टलमेंट स्टार्टिंग विद एस, एलिटरेशन। अलर्ट एंड अब्रप्ट, ए, ठीक है, यहाँ पे एलिटरेशन हो गया। No, this is not alliteration. This is vowel sound. It is written wrong. No, ये नहीं आएगा। A, E, I, O, U जो alliteration होते हैं उसमें सिर्फ consonant letter आते हैं, ये consonant नहीं है। consonant जहाँ पे vowel sound का repetition होता है that is assonance, ठीक है। तो this please don't look at this, ये नहीं है यहाँ पर A because these are vowel sounds. The whole tree trembles. Yes, this is there. Tree देखो ये रहा T और ये रहा T, ठीक है। ये जो टी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका एलिटरेशन। अच्छा, अब अगर ये बोलूँ एडजेसेंट वर्ड्स लिखा हुआ है मतलब बिल्कुल पास, लेकिन अगर लाइन है, पूरी आपकी लाइन है और उसमें अगर दो वर्ड साथ साथ आ रहे हैं, फिर बीच में गैप के बाद एक वर्ड आ रहा है, तो भी वो वर्ड को काउंट किया जाएगा। मतलब पोएटिक डिवाइस आपको एक लाइन में फाइंड करनी होती है कि इस लाइन में कौन सी पोएटिक डिवाइस है या कितनी पोएटिक डिवाइस है। एक लाइन में एक से ज़्यादा भी हो सकती है, सिम्बली भी हो सकती है, एट द सेम टाइम एलिटरेशन भी हो सकता है, एट द सेम टाइम ट्रांसफर्ड एपिथेट भी हो सकता है, मेनी कैन बी देयर। नाउ नेक्स्ट देखो, अच्छा इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इट इज़ नॉट, ये आप अलग से नोट कर लेना, जस्ट वेट, मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ जिससे आपको आसानी हो। नाउ दिस अलर्ट एंड अब्रप्ट, ये होगा आपका एजोनेंस, ठीक है। एजोनेंस क्या होता है, एजोनेंस इज repetition of vowel sound. Vowel is called
वॉल साउंड, AEIOU इनमें से कोई भी आता है तो वहाँ पे एजोनेंस लिटरेरी डिवाइस होता है। ठीक है, तो ये एजोनेंस में आ जाएगा, इसको हटाएंगे नहीं, इसको आप इसमें रख लेना एंड नोट कर लेना। ये जितनी भी यहाँ पे बताई ना पोइटिक डिवाइस, आप एक बार कैसे करना, जस्ट ओपन द टेक्स्ट बुक, ठीक है, टेक्स्ट खोल के रखना, जहाँ पे भी जो भी पोइटिक डिवाइस आ रही है उसमें वो जो मीन्स जैसे कि ये है सेप्टेम्बर सनलाइट, तो अंडरलाइन है, उस लाइन के आगे लिख दो एलिटरेशन। ठीक है, आपको आना भी तो चाहिए लिखना कि कैसे है, सिर्फ पढ़ने और देखने से नहीं आएगा। छोटी सी पोएम है, आप लोग पोएटिक डिवाइस जरूर मार्क करना, ओनली दैन यू विल केम टू नो। ओके, सो एलिटरेशन डन, नाउ अनोमेटोपोइया। ठीक है, एलिटरेशन के बाद ये भी आप एक कर लो, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एसोनेंस वी हैव डन। Onomatopoeia, वर्ड दैट रिप्रेजेंट अ साउंड, इसमें तो बहुत सारे साउंडिंग वर्ड्स हैं। जो भी साउंड, जो भी वर्ड है जो किसी की साउंड बता रहा है वो ओनोमेटोपोइया में आ जाता है। तो यहाँ पे तो बहुत सारे देखो, चिरप, चिटरिंग, ट्रिलिंग्स, विसल, बहुत सारे वर्ड्स हैं, कितने सारे वर्ड्स हैं, एंड दीज ऑल वर्ड्स कम इन द, ये साउंड है, किसी ना किसी तरह की ये साउंड्स हैं, तो साउंड वाले जितने भी वर्ड होते हैं दैट कम्स इन ओनोमेटोपोइया। इसमें एक वर्ड होगा, तो आप ऐसे ही करना, इनको अंडरलाइन करना, जिस लाइन में भी आ रहे हैं उसके आगे लिखना ओनोमेटोपोइया। नेक्स्ट देखो, ट्रांसफर्ड एपिथेट, इट एट्रीब्यूट्स जनरली डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बट मेड टू रेफर टू अ थिंग और आइडिया। इसमें क्या होता है, जनरली जो भी चीज़ आती है, जैसे मान लो किसी ह्यूमन बीइंग के लिए साथ आ रही है वो, बट वो बताई गई है किसी और के लिए, रेफर किसी और चीज़ को किया जा रहा है। क्या मतलब है इसका, मतलब कोई भी अगर एडजेक्टिव, ठीक है, कोई एडजेक्टिव या नाउन आ रहा है, तो वो एडजेक्टिव जिस नाउन के साथ आ रहा है दैट इज नॉट क्वालिफाइंग दैट नाउन, दैट एडजेक्टिव बेसिकली इज टॉकिंग अबाउट एनी अदर थिंग। ठीक है, अभी देखो एग्जाम्पल, हर बेयर face identity marks. When the goldfinch bird sits behind the flowers, the shadow of the flowers on her face seems as if she is wearing a mask with bars on it. Bare face identity marks. Bare मतलब striped. उसके face पे जो striped आ रही हैं, कहीं पे yellow है, कहीं पे black है, कहीं पे yellow है, कहीं पे black है. Exactly जब वो पीछे बैठी है, जब वो टहनियों के पीछे बैठी हुई है और flowers की उस पर शेडो आ रही है, लीफ की भी शेडो आ रही है, फ्लावर्स की भी शेडो आ रही है, तो ऐसा लग रहा है जहाँ पे शेडो है वहाँ ब्लैक पार्ट हो जाता है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे कैसा हो जाता है, येलो रहता है, फिर ब्लैक हो जाता है, फिर तो एक तरह से ऐसा लग रहा है उसने मास्क पहना हुआ है। ठीक है, जो हमने अभी बर्ड का जो फोटो देखा था उसमें तो है ही, कहीं पे येलो कहीं पे ब्लैक है वो, लेकिन जब वो लीव्स के पीछे बैठती है तो ऐसा लगता है जैसे उसके फेस पे मास्क आ गया है। तो यहाँ पर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मार्क्स, ये क्या बताया गया, उसकी आइडेंटिटी क्या है, स्ट्राइप्स, और ये स्ट्राइप्स किसकी वजह से हैं, ये शेडो ऑफ द लीफ या फ्लावर्स की पैटल जो है उनकी वजह से हैं। तो अगर हम बोला जाए तो ये बेयर्ड फेस आया है बर्ड के लिए और बेयर्ड आया है लीव्स या फ्लावर्स के लिए, तो यहाँ पे लिखा गया है फेस के साथ, लेकिन ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, जो शेडो आ रही है टहनियों की, लीव्स की या फ्लावर्स की। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपिथेट मतलब यू आर गिविंग एन आइडेंटिटी और एन एडजेक्टिव टू एनी विद एनी ऑफ द नाउन, बट वो उस नाउन के साथ नहीं आके कहीं और ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट। आई होप इट इज क्लियर। ट्रांसफर एपिथेट इज वन ऑफ द लिटिल क्रिटिकल, थोड़ी सी मीन्स ढूंढनी पड़ती है, यू हैव टू जस्ट रीड द पोम अगैन, ओनली दैन यू कैन जस्ट कैच इट अप विद। ठीक है, दिस इज द समरी ऑफ द पोम जस्ट फॉर योर पर्सुअल। ठीक है, आप लोग ये देख लेना। टेक्सचुअल क्वेश्चंस देखो, थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, बीच में तो ज़्यादा तो पूरी बॉडी उसकी येलो होती है, यहाँ पे येलो होता है, ये इस तरह के थोड़े से कहीं कहीं स्ट्राइप्स लगते हैं उसके, लेकिन जब वो बैठती है उसके फेस पे भी मास्क आ जाता है। Now think it out, use the given value points to frame your own answer. What do you notice about the beginning and the ending of the poem? क्या सोचते हो भाई आप इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग के बारे में? सिमिलैरिटी, बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल ऑब्वियसली। इन द स्टेट ऑफ द लिबर्नम ट्री, कैसा है वो, स्टिल एंड साइलेंट। स्टार्टिंग में भी वो स्टिल एंड साइलेंट था, जब खत्म हुई पोइम तब भी वो वैसा ही था। टू वॉट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड, वॉट इज द बेसिस ऑफ द कंपेरिजन? टू दैट ऑफ अ लिजर्ड, बर्ड्स का मूवमेंट किसके साथ कंपेयर किया गया है, लिजर्ड्स के साथ। बेसिस फॉर द कंपैरिजन इज सडन, अब्रप्ट एंड सिमिलर टू दैट ऑफ द लिजर्ड। यहाँ पर मैं स्लीक और लिख देती हूँ क्योंकि ये भी बताया गया है। ठीक है, अचानक से आती है, सडनली आती है वो, एंड स्लीक स्मूथली आती है, किसकी तरह, लिजर्ड की तरह। ठीक है, नेक्स्ट देखो, Why is the image of the engine evoked by the poet? क्यों दी है उन्होंने इंजन की इमेज, क्यों दी है भाई?
इंजन, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द मशीन, मशीन के लिए स्ट्रक्चर ऑफ द पार्ट्स के लिए वो क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो उसको एनर्जी प्रोवाइड कराता है. सिमिलरली द मदर गोल्डफिंच, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अ मशीन, आई द नेस्ट दैट शेल्टर्स यंग वंस, दैट हर यंग वंस. तो गोल्ड फिंच कौन है, इंजन है, और जो नेस्ट है वो क्या है, शेल्टर है उसके बेबी के लिए, जिसको मशीन से कंपेयर किया गया है. What do you like most about the poem? To be answered yourself with appropriate arguments. Why? Because some can like laburnum tree, some can like goldfinch bird, some can like the young baby. जिनको आराम करना पसंद है, idleness, वो बेबी, उनको बेबी अच्छे लगेंगे, उनका कोई रोल ही नहीं है. जो बहुत शांत है, इंट्रोवर्ड है, उनको laburnum tree टॉप पसंद आएगा. और जो एक्सट्रोवर्ड है, आउटवर्ड है, जिनको बाहर घूमना फिरना एंड ईच एंड एवरीथिंग टू डूइंग द वर्क, बी एनर्जेटिक, वो पसंद है, ऑब्वियसली दे विल डेफिनेटली लाइक द गोल्डफिंच बर्ड. सो यू कैन answer according to your choice. Next देखो, what does the phrase her bed a face identity marks means? A transferred epithet, it's a poetic device given above. Bed is an adjective the flowers have and that has been transferred to the bird. Bared adjective है ये एक, जो फ्लावर्स के लिए आया है, किसके लिए आया है, जो शेडो पड़ रही है फ्लावर्स के लिए. बट ये जो बेयर्ड है ये एडजेक्टिव आया तो फ्लावर्स के लिए, बट किसको ट्रांसफर किया गया है, बर्ड के फेस के लिए. तो यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है. शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिट, इस लाइन का मतलब बताना है. Again leaves her nest in search of the food for a nestling and task is never ending. वो उड़ जाती है, वापस उड़ जाती है towards the sky. Why? Because she was having a task that is never ending. अभी उसने खाना खिलाया है, अब वो फिर उड़ गई है, अब पहले खुद खाना खाएगी, ठीक है. Again food search करेगी, फिर से collect करेगी, again it will come, again feed its बेबी, ठीक है. तो ये हमेशा चलता रहता है, यही तो हमारा काम है. ब्रेकफास्ट, देन लंच, देन डिनर, फिर सो के उठे, फिर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, फिर मीन्स एवरीथिंग इज देयर. एन इंजन ऑफ अ फैमिली, जो हमारे फादर या मदर हैं, वो क्या करते हैं, वो खाने के लिए ही कमाते हैं बस. सो दिस टास्क इज नेवर एंडिंग, इट इज नेवर गोइंग टू बी एंड. हाउ डज द लेबर्नम टॉप इंश्योर सिक्योरिटी फॉर द नेस्टलिंग? नेस्टलिंग यहाँ पे किसके लिए आया है, बेबी बर्ड्स के लिए आया है. कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है लेबर्नम टॉप? बार्क एंड सीड्स ऑफ द लेबर्नर poisonous predators usually do not come to that tree, and yellow of its leaves and flowers camouflage the nestlings from predators. Now अगर हम देखें तो ये कैमोफ्लेज आपने देखे ना, द सोल्जर्स, जो सोल्जर्स की जो यूनिफॉर्म होती है, कैमोफ्लेज प्रिंट ऐसा लगता है उस पर फॉरेस्ट की पत्तियां बनी हुई हैं. दैट वाई दे आर वेयरिंग अ काइंड ऑफ ड्रेसअप, सो दैट दे कैन हाइड देमसेल्व्स while they are in any encounter or they are fighting with any enemy and taking shelter behind the और इन द डेंस फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट और उनके कपड़े बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कैमोफ्लेज. जहाँ पे बिल्कुल प्रिंट जो है, जो डेलिबरेटली मैन मेड प्रिंट है, वो नेचुरल प्रिंट से मैच कर जाए, दैट इज कॉल्ड. तो यहाँ पे कैसे उसको सिक्योरिटी दे रहा है, देखो जो बार्क और सीड है लेबर्नम टॉप के, वो कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं. मतलब ट्री की अगर बार्क किसी ने खा लिया या सीड खा लिया, तो वो कैसा हो जाएगा, दैट जस्ट वर्क एज अ पॉइजनस. तो यहाँ पे जो प्रीडेटर यूजुअली डू नॉट कम टू दैट ट्री, जो शिकार करने वाले हैं वो इस ट्री के पास नहीं आते हैं, क्योंकि अगर वो आएंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से बाग और जो सीड हैं, फ्लावर्स हैं, उसके मुंह में आ जाएंगे और वो मर सकते हैं. एंड येलो ऑफ इट्स लीव्स एंड फ्लावर्स कैमोफ्लेज द नेस्टलिंग फ्रॉम द प्रेडेटर्स. नाउ जो बेबी बर्ड है वो भी येलो है, जो उसकी लीव्स हैं, सीड हैं, ब्रांचेस हैं, वो भी येलो हैं. तो वो एक तरह से कैमोफ्लेज का काम करती है, मतलब दिखाई नहीं देता. अगर प्रेडेटर्स कोई आने की कोशिश भी करेगा तो उनको समझ नहीं आएगा देयर इज अ नेस्ट एंड बेबी बर्ड्स आर देयर. व्हाई? बिकॉज देयर कलर एंड द ट्री कंटेंट्स कलर वो बिल्कुल सिमिलर हैं, वो भी येलो हैं, वो भी येलो हैं. तो ये किस तरह का काम करता है, एक तरह से शील्ड का काम करता है. दैट्स व्हाई गोल्डफिंच बर्ड हैज चूजन लेबर्नम टॉप ट्री टू मेक इट्स नेस्ट फॉर baby birds. What is the significance of yellow in the poem? Yellow का क्या importance है, हर जगह yellow yellow yellow. Autumn, leaves and flowers of the laburnum tree, feathers of the goldfinch, all are yellow in color, and the mother bird ensures high security for her babies. Yellow color helps in camouflaging her nestlings from predators. ऑटम सीजन भी येलो होता है, सारी ग्रीन लीव्स जो होती हैं येलो में टर्न हो जाती हैं और वो गिर जाती हैं. जो लीव्स और फ्लावर्स हैं लेबर्नम के वो भी येलो हैं, लेबर्नम ट्री भी येलो हो गया. फेदर है जो गोल्डफिश
फिंच के वो भी येलो हैं, जो गोल्ड फिंच के जो बच्चे हैं वो भी येलो हैं, तो ये एक तरह से कैमोफ्लेज का काम करते हैं। एंड दिस येलो कलर किसके लिए, बेबी के लिए, जो गोल्ड फिंच के बेबी हैं, और उनको हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो येलो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोथ फॉर ट्री एंड फॉर बर्ड। What value do you learn from the goldfinch? Motherly care and affection. क्या सीखते हैं हम goldfinch bird से? How she was affectionate and very careful towards her baby, and this is care for her offspring flies regularly to search for the food, and sudden movement alerts so that remain unnoticed by the predators, concerned about the safety and security of her nestling. Affection और care किससे शो हो रही है कि वो बार बार जा रही है और अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ कर लाती है, ठीक है। सेफ्टी कहाँ से शो हो रही है कि वो अलर्ट है, हमेशा अटेंटिव रहती है, बहुत स्मूथली आती है, ठीक है। जब स्मूथली आ जाती है, उसके बच्चे शोर मचाने लगते हैं, वो फटाफट उनको खाना खिलाती है और चली जाती है, सो दैट दे आर जस्ट गोइंग टू सेव देयर बेबी, सेफ एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सके प्रेडेटर्स से अपने घोंसले को और अपने बेबीज़ को, ठीक है। तो दो तरह से वो उनके लिए केयर करती है, एक अफेक्शनेटली और एक इन द सिक्योरिटी मैनर, ठीक है। नेक्स्ट, how does the laburnum tree appear in September? In the afternoon of the autumnal September sunlight, the laburnum top appears silent and quiet and still. कैसा है? Silent and quiet and still. A few leaves of the tree are turning yellow and all the seeds of the tree have fallen. थोड़ी सी जो पत्तियाँ स्टार्ट हो गई हैं, येलो होना स्टार्ट हो गई हैं, और सारे जो सीड्स हैं वो ज़मीन पर गिर गए हैं. This is the main appearance of the laburnum tree in September. How does the poet Ted Hughes portray the arrival of the goldfinch on the end of the branch of the laburnum tree? कैसे आती है वो और आकर बैठ जाती है, वो कैसे बताया गया है? The goldfinch chirps, making a sudden quick movement. अचानक से उसकी आवाज़ से एक मूवमेंट होता है. She settles down at the branch and her arrival is marked with the quickness, unexpectedness and sudden surprise. अचानक से आती है वो, किसको? एक तरह से प्रेडेटर को धोखा देने के लिए भी, और बहुत स्मूथली अपना अराइवल आती है और स्मूथली अपने नेस्ट के पास जाकर अपने बच्चों को खाना खिलाती है. तो यहाँ पे क्या होगा? अनएक्सपेक्टेडनेस, क्विकनेस एंड सडननेस. Describe the movement of the goldfinch in the laburnum tree. At first the goldfinch settles at the branch end. सबसे पहले branch end पे बैठती है. Then it watches and suddenly she enters the middle part of the tree. क्या वॉच करती है वो? कोई है तो नहीं, कोई खतरा या कुछ भी इस तरह की चीज़ तो नहीं है. उसके बाद वो डेंस पार्ट में चली जाती है. इट्स मूवमेंट इज एज स्मूथ एज दैट ऑफ अ लिजर्ड. जब वो अंदर जाती है वो मूवमेंट बहुत स्लीक है, बहुत स्मूथ है, लिजर्ड की तरह. What happens when the goldfinch enters the thickness? As the goldfinch enters the thickness, a confusion of the sounds is stirred up as if a machine has started working. Slight shaking of the wings and just quavering sound make the tree tremble and full of excitement. जब क्या हो जाता है, जैसे ही वो अंदर जाती है अचानक से बहुत हेजिटेशन, क्विक साउंड आने लगती हैं, फ्लटरिंग ऑफ द ट्रीज. छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, अब उनको खाना मिलेगा. They started slight shaking of their wings, they are just making the quavering sound, and the complete tree started shaking with the excitement, and that is completely filled with the life. Next देखो. What do you think the goldfinch does in the thickness of the laburnum tree? क्या करती है भाई वो thickness में जाके? As the goldfinch enters the thickness of the tree, laburnum tree, there is a spontaneous outbreak of the twittering, quivering sound and tremor of the wings. जैसे ही वो अंदर जाती है बिल्कुल तुरंत स्पॉन्टेनियस, बिल्कुल जैसे ही वो आई, मतलब उसने देखा टू द पॉइंट, एट द सेम पॉइंट आउटब्रेक, मतलब एक तरह से बाहर हो जाते हैं जो बच्चे हैं, वो काबू से बाहर हो जाते हैं. दे स्टार्टेड मेकिंग द स्लीक एंड सॉफ्ट स्टिटरिंग साउंड, क्वेवरिंग साउंड एंड ट्रेमर ऑफ द विंग्स. और उनके जो विंग्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? मूव होने शुरू हो जाते हैं. And the whole tree seems to shake slightly and is excited. पूरा जो ट्री होता है वो हिलने लगता है मूवमेंट से और वो लाइफ से फुल हो जाता है, भर जाता है. How does the goldfinch depart from the laburnum tree? कैसे जाती है वो? Depart मतलब चले जाना. The goldfinch whistles and chirps in a mysterious
फ्राइटनिंग एंड अ डेलिकेट मैनर, ठीक है। बिकॉज इस पोम में कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी साउंड वर्ड्स आए हैं, जितने भी मूवमेंट के वर्ड्स आए हैं, अराइवल, डिपार्ट, प्लीज जस्ट लर्न दैट, एक बार लिख के देख लेना उनको। इफ़ यू आर राइटिंग फ्रॉम योर साइड दैट विल नॉट क्रिएट द वेरी मीन्स अ काइंड ऑफ इम्प्रेशन दैट देयर शुड बी। छोटी सी पोइम है तो आप लोग लर्न कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसी साउंड करती है, यहाँ पे चिर्पिंग साउंड नहीं है, कंटिन्यूस ट्रेमलिंग साउंड नहीं है, यहाँ पे विसल वाली साउंड है, ठीक है। चिर्प्स एंड मिस्टीरियस, जो चिर्प है वो मिस्टीरियस है, सीक्रेट से भरी हुई है एंड थोड़ी सी फ्राइटनिंग है, बट वो सॉफ्ट है, बहुत तेज़ी से वो नहीं चिल्ला रही है। देन शी जंप्स फॉरवर्ड, आगे वो कूदती है, एंड विद लॉट्स ऑफ फोर्स फ्रॉम द ब्रांच एंड सोर्स अप टू द स्काई। सोर्स अप इज कॉल्ड जस्ट मूव अवे एंड फ्लू टुवर्ड्स द स्काई, ठीक है। तो ये उसका डिपार्टिंग मूवमेंट था। So here we have completed the poem. Enough question answer I have given you. The question answer mainly comes in a excerpt manner, okay, text manner. 3-4 लाइनें आएंगी, उसमें से आपके 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे। हार्डली मीन्स मोस्टली दे आर ऑफ 1 मार्क्स, 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, तो यू विल बी एबल टू कंप्लीट दैट। एंड वन थिंग प्लीज रिमाइंड दैट पोइटिक डिवाइस आप लोग एक बार ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। सो दिस वीडियो एंड्स हियर, आई विल सी यू अप विद द नेक्स्ट वीडियो।